Hello, student. Today we are going to start our third chapter, which is about colonial agrarian policies. But means what is the policies of colonial period? In previous chapters, we were studied what are the things, why are the EIC English East India Company were come in India, how they come, how many companies were there, and all that we learned. Now we have to learn their policies in this chapter. So here we start a glimpse of the past. So first of all, we see the a little bit glimpse of the past. What is the glimpse of the past? Permanent settlement. Permanent settlement was introduced by Lord Cornwallis, governed Bengal, Bihar, Odisha, and Benares division of UP. So, in UP, they are the division Bengal, Bihar, and Odisha, and Benares. First of all, there are so many things in colonial time period or in the British time period. There were so many यूं कह सकते हैं हम कि बहुत सारे पॉलिसीज थे. There are so many policies were there, and Bengal, Bihar, and Odisha. First of all, they captured Bengal area. है ना, they were established their factories and all those things in Bengal so widely, है ना. Then they moved to Bihar, then Odisha, then Banaras. धीरे धीरे करके वो क्या इन सब जगहों पे अपना हक पूरी तरह से कामयाब करने में सफल रहे, यूं कह सकते हैं. एंड there was one other thing, Mahalwari settlement. They are permanent settlement, Mahalwari settlement, and Rayatwari settlement. There are three things were introduced by British colonial period, and Mahalwari settlement was introduced by Holt Mackenzie. They are they are none other than the higher authority of the company, है ना. Uh, okay, then they were apply this type of settlements. So first thing is Mahalwai settlement was introduced by By Holt Mackenzie, the Mahalwari system was introduced to the Indian people, okay, or Indian maharajas and all that, kings and all, higher authorities converted the modern day Uttar Pradesh, certain part of Madhya Pradesh and Punjab. What they say? So the Uttar Pradesh, starting Uttar Pradesh, were we can say that Bengal, Bihar, Odisha, and Banaras were the part of Uttar Pradesh, and they then in Mahalwari settlement, then it convert Uttar Pradesh, certain part of Madhya Pradesh, कुछ part किसका, मध्य प्रदेश का and पंजाब का. Under this system, the unit of revenue settlement was the village or mahal, and the revenue demand was made collectively on the village. Okay, now next Rayatwari settlement was introduced by Thomas Munro, also known as the Monroe system, introduced in the Madras presidency, है ना, or further extended to the Bombay presidency and Assam. So जहां जहां EIC ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई, ठीक है, वहां वहां इनके लीडर्स ने, इनके जो लीडर्स कह सकते हैं या फिर यूं कह सकते हैं हम कि जो इन लोगों के मेन अथॉरिटी होती थी, वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कुछ सिस्टम लेके आते थे. किस लिए भाई? इम्प्रूवमेंट के लिए. जो जिस तरह से इनकी नीति रही है कि धीरे धीरे करके फूट डालो राज करो नीति, है ना, राजाओं में फूट डालकर अपनी अपनी जो फैक्ट्रीज है उनको स्टैब्लिश करना, धीरे धीरे राजनीति के अंदर आना, पॉलिटिक्स के अंदर आना, पॉलिटिक्स को अपनाकर देन they were moved to applying the system to
to the Indian peoples and forcing them to do so things, to do lavery and all that things, है ना? तो हम यहाँ पे वही सब पढ़ रहे हैं और यहाँ पे वही सब सीखेंगे हम कि किस तरह से ये आए और किस तरह से। देखो बेटा, स्टार्टिंग में क्या भाई, जैसे ये ईआई से आई तो जो मुगल सल्तनत थी, एक तरह से मुगल सल्तनत का और मराठा का पहले बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। मुगल सल्तनत इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स पे राज करता था, देन मराठास उन पे उनके अगेंस्ट थे, तो पूरा मराठा साम्राज्य आने लगा था। फिर धीरे धीरे करके फिर जैसे ही ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने इन दोनों के बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि सभी राजा इकट्ठा होकर ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट हो गए थे। बट क्या करा ब्रिटिश लोगों ने, फूट डालो और राज करो, उन्होंने मुगल्स में फूट डालने का काम कर दिया, है ना? मुगल सल्तनत के जो राजा थे उनमें फूट डालो राज करो, उनको लालच दिया कि अगर आप बाकी राजाओं को पछाड़ देते हैं या फिर उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर इंडिया के जितने भी एशियंस, मराठास हैं या फिर राजपुतानास हैं, है ना, मुगल सल्तनत है, अगर ये सब एक हो गए तो फिर ईआईसी कभी भी यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं हो पाती। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं हो पाती, जो कि इनके लिए बहुत बड़ी हार होती। ठीक है? तो जिनके कैप्टन्स वगैरह जो होते थे, है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फूट डालो राज करो नीति वाला चीज अपनाई। देखो, हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से इनकी कॉलोनीज, इनकी पॉलिसीज थी। You have read in the previous chapter that the land revenue was the most important source of income to the colonial government. It was necessary, therefore, to establish a system of estimating and collecting land revenue from the peasants. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने रेवेन्यू स्टार्ट किया। जैसे ही इन्होंने राजाओं से हाथ मिलाना शुरू किया, है ना, इन्होंने कुछ हिस्सा, किसका भाई, ये ट्रेड करने आए थे, ट्रेडिंग का कुछ लाभ, कुछ हिस्सा राजाओं को देने के लिए उन्होंने ये कहा। और उसके लालच में इन्होंने ये फरमाइश रखी कि आप लोगों से कर क्यों नहीं वसूलते? कर मतलब व्हाई यू डोंट टेक रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल, है ना? तो ये चीजें राजाओं के दिमाग में ला लाकर इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू सिस्टम लेके आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, the land revenue system was the most important source of income to the colonial government। जो ये colonial government establish हुई थी, तो जो सबसे ज्यादा यूं कहें कि इनकम का सोर्स क्या था, लैंड रेवेन्यू, जमीन के ऊपर कर लेना, ब्याज लेना, है ना, वो था। इट वॉज, है ना, इट वॉज नेसेसरी, इट वॉज नेसेसरी therefore to establish a system of estimating and collecting land revenue from the peasants। Okay, it is estimating, uh, और इट्स नेसेसरी ऑल्सो टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम पीसेंट्स। जो किसान वर्ग है ना, जो कृषि वर्ग है, उससे जरूर हो गया था कि आप उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे ही सही। अगर नहीं करते हैं तो वो फिर अधिकारियों पे कार्रवाई करते थे। ठीक है? तो ये जरूरी था। तो वेरियस लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैम टू बी स्टैब्लिश इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। अलग अलग, अब क्या था कि इन्होंने हमारे इंडिया को सब कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया, है ना? अब इन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरह से लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, किसी भी एक तरीके से नहीं। जैसे जैसे जहां का जो वॉइसरॉय वगैरह ये होते थे, है ना, वो अपने हिसाब से कोई सी भी नीति लगाकर उस लैंड के ऊपर रेवेन्यू ले सकते थे। We will discuss this and their impact in this chapter. We will also see how commercial crops such as indigo, cotton, tea, and jute helped the British maintain a profitable balance of trade in their own interest and at the cost of improvement of the Indian peasantry। क्या कहा जा रहा है, हम इन सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। हम इस
पूरी चैप्टर के ऊपर हम स्टडी करेंगे, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और हम ये भी जानेंगे किस तरह से कॉमर्शलाइज जो क्रॉप्स हैं, मतलब कॉमर्शलाइज जो क्रॉप्स का मतलब क्या है, जिनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता था उस वक्त पर ब्रिटिश लोगों के जरिए, जो है इंडिगो, कॉटन और टी और जूट। ठीक है। तो ब्रिटिश लोगों ने ये प्रॉफिट मेंटेन बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए किस तरह से उन्होंने इंडियन पीसेंट्री को इम्पोरिशमेंट में लेके आए। ठीक है। और किस तरह से उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया, है ना, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, चेंजेस इन द रूरल सेटअप। पहली जो चीज आती है वो क्या आती है, चेंजेस इन द रूरल सेटअप, है ना। यहाँ पे देखेंगे हम कॉलोनियल कॉलोनियल एगमेंट। ठीक है। अब जो कॉलोनियल एगमेंट आपके बुक में जो थोड़े बहुत वीडियोस हैं, थोड़े बहुत एनिमेशंस हैं, मैं उसके जरिए मैं चाहता हूं आप वो भी सीखें। उनके जरिए आपको हेल्प लगेगी, किस लिए, और अच्छे से सीखने में और अच्छे से समझने में। तो हम शुरू करते हैं बेटा। ओके। सो we can see that. So let's note down that seven in 1793, in 1793, permanent settlement permanent settlement were introduced by Lord Cornwallis. Okay. Lord Cornwallis is the introducer in 1793. What? Permanent settlement. See here, they are the system. This is the system of permanent settlement. First of all, the landowner or zamindars acquired hereditary rights over land. ठीक है। So sorry. Okay. So what we see here, landowner or zamindars acquired hereditary rights over land, मतलब यहाँ पे वो वाली चीज आ रही है, जैसे राजा का बेटा राजा बनना है ना, वैसी चीज आ रही है। अगर सपोज इफ वी हैव अ लैंड, इफ वी आवर फादर हैड अ लैंड, देन व्हाट वी से, ये तो मेरा भी है ना, आप अपने पापा के हो ना, तो वैसे ही वो हेरिडेटरी राइट्स ओवर लैंड, किसी भी लैंड पे हेरिडेटरी राइट्स आ जाते थे। ठीक है। आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल अगर किसी के नाम पर अगर कोई जमीन है तो उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, आपको कोर्ट जाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। वो सब किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लैंड ओनर और जमींदार एक्वायर हेरिडेटरी, मतलब अगर कोई लैंड ओनर और जमींदार है तो वो अपने पुश्तैनी जमीन पर अधिकार कर सकता है, उसका हक होता है उसके ऊपर। ठीक है। और दूसरी चीज क्या कही जा रही है कि जमींदार हैड टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एवरी ईयर। जमींदार को क्या, हर साल अमाउंट जमा कराना पड़ता था। ठीक है। इवन इफ देयर वर एडवर्स कंडीशन, ठीक है, सच एज फ्लड्स और ड्रस्ट, मतलब अगर सपोज करो आपका कोई कल्टीवेशन आपने किसी लैंड पर किया,
ठीक है, कोई कल्टीवेशन चल रहा है, आपने वहां पे फार्मरी करी। अगर फ्लड की वजह से या फिर सूखा पड़ने की वजह से, है ना, ड्रस्ट की वजह से वहां पर आपका कल्टीवेशन नहीं हो पाया, आप उतना जो क्रॉप्स है उतना बिल्डअप नहीं कर पाया, उतना जनरेट नहीं कर पाया जितना आप सोच रहे थे, या फिर पूरी तरह से तबाह हो चुका था वो लैंड, लेकिन उस साल भी आपको उतना ही रेवेन्यू देना होगा जो कंपनी ने फिक्स किया है। ठीक है, लैंड वुड बी, अगर नहीं देते हो तो उसको बेच दिया जाएगा, है ना। और एक और चीज है क्या, दिस रेवेन्यू वॉज फिक्स परमानेंटली फॉर द नेक्स्ट 10 years। ठीक है। सो this is the brief about the colonial policies. So there we can see it is more beneficial to zamindars in comparison to company, because all the amount were goes to first of all to zamindar, and they were set up all the hisab kitab or that thing for the company. So basically company is not directly connected to the people, they were connected to by their local guardians, like they are also an indians like us, है ना। but where it fails, where it goes down, when uh, जब लालच आ जाता है ना, greediness, when the greediness come in the nature of people, then it goes down. Okay, so the proper benefit were not collected by British also. Yeah, they have that type of thing ki Indians and all that cheap thinking and all that, but not the total convenience of the total revenue were come to British or the company too, है ना। The zamindars peoples were collect that and they kept them themselves. What is the changes in the rural setup? During the ancient and medieval period, farmer who cultivated a piece of land could hold it for a very long period. मतलब जो भी फार्मर है, अगर किसी भी एक लैंड पे वो कल्टीवेशन करता है तो वो उस अ, जगह को लंबे समय तक अपने पास रख सकता था। दे यूज टू पे अ पोर्शन ऑफ द produce from the land as tax, मतलब they used to pay a portion of the produce from the land as tax। मतलब ये क्या था, राजा महाराज मतलब मुगल सल्तनत के वक्त ऐसा कहा जाता था कि अगर आप किसी जगह पे कोई भी फार्मरी कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जितना भी आपने कल्टीवेशन किया, आपको जो भी फायदा हुआ जिस भी तरह से, उसका कुछ हिस्सा, उसका कुछ पार्ट, एक थोड़ा सा, जैसे आप थोड़ा सा 10% या फिर 5% आप जो भी कह सकते हो, वो पार्ट आपको राज घराने को या फिर जो आपकी गवर्नमेंट है उसको देना होगा, ठीक है, एज अ टैक्स, टैक्स की फॉर्म में, है ना। इन रिटर्न क्या बदले में क्या होता है, देयर राइट टू होल्ड
in return their right to hold uh, and cultivate that piece of land remain intact. अगर आपको उस जगह पे कंटिन्यू कल्टीवेशन करना है, आप बनाए रखना चाहते हो कि हाँ मैं तो इसी जगह पे कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, देन व्हाट, क्या आएगा बेटा कि वो उसी जगह का वो जो रेवेन्यू आपने दिया है, वो जो टैक्स आपने दिया है, वो उसके बदले आपको वो जमीन जमीन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना? वो जमीन आपको दी जा रही है है ना? क्योंकि राजा का ही पूरा हक होता था पहले के वक्त पे। तो मुगल सल्तनत में मैक्सिममली देखा जाए तो इस तरह का रेवेन्यू सिस्टम लाया जाता था। ड्यू टू द सिस्टम, विलेज कुड प्रोड्यूस इनफ फूड crops to fulfill the needs of the people living there. अब ये सिस्टम क्या था बेटा कि लोग चाहे जो भी हो, है ना, वो अपनी जरूरत के हिसाब से तो कल्टीवेशन कर ही लेते थे कि इतना कल्टीवेशन तो कर ही लेंगे कि हमारा पेट भर जाए और राजा का पेट भी भर जाए। उतना गेहूं और चावल जो भी है वो हम उन्हें दे देंगे जो उनको चाहिए होता है, और हमारा पेट भी इसमें भर जाएगा और हम इसको बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, इतना तो इनफ था। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ, दस द विलेज बिकम सेल्फ सफिशिएंट, है ना, ताकि क्या जो विलेज होता है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता। ठीक है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शेर शाह सूरी, अंडरलाइन करना बेटा, कब, जब शेर शाह सूरी का जो वक्त आया, तो क्या हुआ, द सिस्टम ऑफ मेजरिंग लैंड एंड गिविंग पाटा और रिटर्न रिकॉर्ड टू इट्स ऑनर वॉज स्टार्टेड। ये वो वक्त था बेटा जब क्या हर चीज का, लैंड का हिसाब किताब रखा जाने लगा था कि इस आदमी के पास इतना लैंड है, इस आदमी के पास इतना लैंड है। ठीक है, और इसका रिकॉर्ड किया जा रहा था कि कौन ऑनर है इसका, है ना, और कब से ये स्टार्ट हुआ, कितना इसको भेजना है, इसका कितना कल्टीवेशन हो रहा है ना, ये सब शुरू हो गया था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, रेवेन्यू टू बी पेड बाय फार्मर डिपेंडेंट ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, मतलब वो जमीन कितनी उपजाऊ है ना, उसके ऊपर रेवेन्यू डिपेंड करता। अगर सपोज करो आपका कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, कल्टीवेशन मतलब जो आपकी फसल हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है, यूं कहा जा रहा है आपकी जो फसल हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है, और आप चाहते हो कि सभी अब राजा ने इस चीज को देख लिया, है ना, और एक ऐसी जगह है, हर जगह तो एक जैसी नहीं होगी यार, ऐसी जगह है जहाँ पे कल्टीवेशन इतना अच्छा नहीं हो पा रहा, एक जगह ऐसी है जहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तो उसके हिसाब से रेवेन्यू सेट किया जाता था, है ना। ये भी बहुत अच्छा तरीका है रेवेन्यू कलेक्ट करने का, अगर आपको गवर्नमेंट रन करनी है तो, है ना, क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं उनको भी खाने पीने के लिए चाहिए होता है, तो राजा उसको वहीं से देता था। ठीक है, तो वेन एवर नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्रॉट और फेमाइन अफेक्टेड एनी रीजन, तो जब भी क्या होता था, सूखा या अकाल या फिर पड़ता था हमारे किसी भी रीजन पे, तो द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड वाज रिड्यूस्ड, है ना, जो अमाउंट कलेक्ट किया जाना था रेवेन्यू का वो रिड्यूस कर दिया जाता था। ठीक है, समटाइम्स व्हेन द सिचुएशंस वाज टू क्रिटिकल, और जब ये सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती थी ना, द अफेक्टेड फार्मर वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स, तो जो अफेक्टेड फार्मर है उसको बिल्कुल ही हटा दिया जाता था कि तेरे को टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, आप फ्री हो। और बहुत सी जगहों पे तो ऐसा होता था कि राजा जो है वो अपने पास से जितना भी है उसको हेल्प करता था। हाउएवर आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ बक्सर, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी, बैटल ऑफ बक्सर, इसकी जीत के बाद, इस जीत के बाद पूरी तरह से जो ब्रिटिश लोगों का आधिपत्य था, यूं कहें कि उनका राज था, वो आना शुरू हो गया था, उन्होंने अपनी कंपनी को फैलाना शुरू कर दिया था। However, after the victory of British in the Battle of Buxar 1764, 1764 में ब्रिटिश लोग जीत चुके थे लड़ाई बक्सर की। The EEIC got the Diwani of Bengal, which authorized the company to collect revenue from Bengal. ठीक है बेटा, यहां पर ये बात कही जा रही है कि बैटल ऑफ बक्सर की जीत के बाद
है ना। बक्सर की जीत के बाद जो एक प्रस्ताव है या फिर एक अधिकार यूं कहें, जिसे हम दीवानी कह सकते हैं, जिस दीवानी को बंगाल कहा गया, उसने कंपनी को ये अथॉरिटी दे दी कि वो बंगाल के हर इंसान से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता था एंड बी इन चार्ज ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। क्या वो इंचार्ज हो गया था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब वहां की जो सिविलियंस है उनको एडमिनिस्ट्रेट करने का, उनपे व्यवस्था बनाने का, वहां पे एक तरह से कह सकते हैं हम कि राज करने का उसे ये अधिकार मिल गया था, उसे अथॉरिटी मिल गई थी। Thus, the company, though of working out the best possible deal to ensure maximum revenue, thereby giving maximum profit. तो इस तरह से कंपनी thought of working out the best possible deal to ensure maximum revenue, मतलब उन्होंने क्या, अब ये पॉलिसीज लाना स्टार्ट कर दी कि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू किस तरह से ले सकते हैं लोगों से, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किस तरह से कमा सकते हैं। अब बेटा राजा लोग तो क्या अपनी प्रजा के बारे में भी सोचता है ना, लेकिन ब्रिटिश लोगों का क्या, वो तो एक कंपनी लेके आए हैं, है ना। और जब उनको ये अधिकार मिला तो उन्होंने हमारे बारे में, जो लोकल लोग हैं उनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया। So it introduced colonial agrarian policies, which included following aspects. So this is the thing, and we will study next thing in our next class. Thank you so much for giving your time. Bye.